Hello dear students and dear viewers, welcome back again Lux classes. I would like to discuss about the structure and biological importance of carbohydrate. Classification of carbohydrate. Carbohydrate has been classified into three categories. First one is the monosaccharide, disaccharide, polysaccharide. Monosaccharide, that is known as simple sugar, that is the single chain of carbohydrate. It includes aldoses and ketosis. In the aldoses, glyceraldehyde, erythrose, ribose, glucose, glucoheptose. In ketose form dihydroxyacetone, erythrulose, ribulose, fructose and pseudoheptulose. Under the heading of disaccharides, disaccharides is made up of two monosaccharide units. First one is the reducing, second one is the non-reducing. Reducing, popular example of reducing disaccharide is the maltose, lactose, and non-reducing will be sucrose. Next one is the oligosaccharides. Oligosaccharide includes raffinose, steichose, verbascose. Under the heading of disaccharide, a disaccharide is the sugar formed of when two monosaccharide are joined by glycosidic bond. First one is the maltose, that is made up of glucose plus glucose, that is found in the sweet potato, honey, pears, corn syrup. And in the maltose, both the glucose molecules, they are joined together due to the alpha 1,4 glycosidic bond. The lactose, that lactose is made up of glucose and galactose, that is found in the milk. Sugar, that is found in the milk. In the lactose, glucose and galactose both are bound together due to the formed due to the alpha beta 1,4 glycosidic bond. In the sucrose, that is made up of glucose plus fructose, that is found in the corn syrup, corn sugar, sugar beet, honey. They form alpha beta glycosidic linkage. Next one, that is the oligosaccharide. Under the heading of oligosaccharide, carbohydrate after hydrolysis which gives 2 to 10 molecule of monosaccharide. Popular example is raffinose, steichose, verbascose. Raffinose includes the glucose plus galactose plus fructose. That is the example of trisaccharide. Now we are moving. Next one is the polysaccharide. Polysaccharides are polymers of monosaccharide. Hydrolysis product produces many molecules of monosaccharides. Polysaccharide has been classified into two categories. First one is the homopolysaccharide and second one is the heteropolysaccharide. Under the heading of homopolysaccharides, these are made up of some types of monosaccharide monomers. These are made up of same type of monosaccharide monomers, and they are again of two types. First one is the storage, second one is the structural. Under the heading of storage polysaccharide, starch, that is found in the plant and bacteria, glycogen in animal cell, paramyelin in some protozoa. Storage polysaccharide, that is the starch, that is found in the plant as well as in bacteria, glycogen, that is found in the animal cell, paramyelin, that is found in some protozoa. Structural polysaccharide include the cellulose, that is found in the plant cell wall, chitin, that is the exoskeleton of arthropods, peptide. And in the heteropolysaccharide, these are made up of two or more different monosaccharide units, peptidoglycan, hyaluronic acid. Peptidoglycan is found in the bacterial cell wall, hyaluronic acid is found in the connective tissue. Now we are giving some more example of monosaccharides. Suppose that in monosaccharides, it consists of 3 to 7 carbon, C3H6O3, that is the triose, example is the glyceraldehyde. C4H8O4 tetrose, that is the erythrose. C5H10O5, that is the pentose, example is the ribose, found in the DNA and RNA. In DNA, deoxyribose are found. In the RNA, that is the ribose sugar is found. C6H12O6, that is the hexose, example is the glucose, fructose and galactose. C7H14O7, that is the heptose,
that is the pseudoheptulose, that is in the ketose form. Now let us move forward and we will discuss one by one in detail about the monosaccharides. In the next we will discuss about monosaccharide, disaccharide and oligosaccharides. What is carbohydrates? Definition. Carbohydrates are polyhydroxyaldehyde or ketone. कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड होते हैं या तो कीटोन होते हैं. दे आर मेनली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 एलिमेंट्स, दैट इज द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. So it is very clear that the carbohydrates are the polyhydroxyaldehyde or ketone. They are mainly consist of the only 3 elements, that is the carbon, hydrogen and oxygen, that is the CH and O. The name is derived from the empirical formula CnH2O whole n, which looks like the hydrates of carbon or carbohydrates. ठीक है, इसमें जितने कार्बन होते हैं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं और बना लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. So the first of all we are talking about the monosaccharides. Before this we have to provide the classification of carbohydrates, in which we have to explain that the carbohydrates are classified into 3 categories. First one is the monosaccharides, then oligosaccharide, or you can say disaccharide, oligosaccharide and then polysaccharide. So there are 3 types of the carbohydrates are found. So the first, now let us move forward and we will discuss about the monosaccharide in detail. First one is the monosaccharide. Monosaccharides are the smallest sugar or the simplest sugar which are obtained after hydrolysis of the complex carbohydrate, which cannot be hydrolyzed further. मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट शुगर होते हैं, दैट इज द सिंपल शुगर होते हैं, which are obtained after the hydrolysis of the complex carbohydrate. जिनकी जो मोनोसैकराइड्स होते हैं which are obtained माने जिनको हम प्राप्त करते हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनके हाइड्रोलिसिस के पश्चात मोनोसैकराइड्स को हम ऑब्टेन करते हैं और किसी भी मोनोसैकराइड का फर्दर हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है. मोनोसैकराइड 2 फॉर्म में पाए जाते हैं. जैसे ग्लूकोज है, इसके पहले मैंने बताया था मोनोसैकराइड ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज. बिफोर जो मैंने क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था, मैं हेक्सोज की बात करता हूँ, ग्लूकोज की बात करता हूँ, डिओरियल फॉर्म की बात करता हूँ, दैट इज द ग्लूकोज. व्हेन द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप both are present on the same side, that is the right side as the ultimate carbon, then it is called as D form. जब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल दोनों ग्रुप एक ही साइड में पाए जाते हैं, सेम साइड में पाए जाते हैं, तो इसको डी फार्म कहा जाता है, दैट इज द डी ग्लूकोज. व्हेन द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल सब्स्टिट्यूट्स आर अरेंज्ड इन द अपोजिट ओरिएंटेशन, दैट इज द लेफ्ट साइड टू द कार्बन एटम, इट इज कॉल्ड एज एल फार्म. जब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल सब्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं अपोजिट साइड में पाए जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में पाए जाते हैं कार्बन एटम की, उसको एल फार्म कहा जाता है. डी माने होता है डेक्स्ट्रो एंड एल मीन्स होता है लीबो. डी फॉर डेक्स्टर और राइट, एल फॉर लीबो और द लेफ्ट साइड. आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है डायग्राम में, ये डी ग्लूकोज है. देखिए डी माने डेक्स्ट्रो, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल है OH. when the hydrogen and hydroxyl are the same side, यहाँ पर H हाइड्रोजन एंड दिस इज द हाइड्रोक्सिल, दैट इज द सेम साइड. ठीक है, यहाँ पर H दैट इज द, इसलिए इसको कहते हैं डी ग्लूकोज, दैट इज द डेक्स्ट्रो. when the hydrogen and hydroxyl substituents are arranged in the opposite side, जैसे यहाँ हाइड्रोक्सिल जो है लेफ्ट साइड में है लेकिन हाइड्रोजन कहाँ है? राइट साइड में है. तो यहाँ दोनों में अंतर है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल लेफ्ट साइड में है और हाइड्रोजन जो है वो राइट साइड में है, इसीलिए इसको कहेंगे हम लीबो, लीबस ऑन द लेफ्ट साइड. यानी लेफ्ट साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और राइट साइड में हाइड्रोजन है. व्हेन द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल सब्स्टिट्यूएंट्स आर अरेंज्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, एक जो है लेफ्ट है वो OH लेफ्ट है और हाइड्रोजन क्या है? राइट है. तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है लेफ्ट साइड में है और हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो
राइट साइड में है, सो द हाइड्रोजन एंड हाइड्रॉक्सिल सब्स्टिट्यूएंट्स बोथ आर अरेंज्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, that is forming the levoglucose or the L form of the glucose, that is the, and here this is the D glucose because OH and H both are found in the same side, that is the right side. So this is the D glucose and this is the L glucose. That's all about the monosaccharides. And now let us move forward and we will discuss about the importance of monosaccharides. Before this we will discuss the importance of carbohydrate in the next topic, next when we have to completed about all the three saccharides. Now let us move forward and we will discuss about the oligosaccharide and disaccharides. Now let us move forward and we will discuss about the oligosaccharides and disaccharides. Oligo means होता है few, saccharide means होता है sugar. Oligosaccharides are the chain of monosaccharides. Oligosaccharides क्या होती है? मोनोसैकेराइड्स की श्रृंखलाएं होती हैं. They are linked together by the glycosidic bond, जो आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं. ओलिगोसैकेराइड्स है ओनली फ्यू मोनोसैकेराइड्स रेजिड्यूज. मोनोसैकेराइड्स के पास केवल कुछ ही मोनोसैकेराइड रेजिड्यूज होते हैं, लगभग 2 to 9 या 8 तक होते हैं. दोज विथ मोर रेजिड्यूज आर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड. जिनके पास ज़्यादा मोनोसैकेराइड रेजिड्यूज होते हैं उनको पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट, मोनोसैकेराइड यूनिट की संख्या के आधार पर दे आर नेम्ड एज डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड. लेकिन फर्स्ट बात करते हैं डाइसैकेराइड्स की. That is the very important. It is the most important. This is also very important. डाइसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड. डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं? ये भी एक ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं. विथ ओनली द 2 मोनोसैकेराइड रेजिड्यूज आर लिंक्ड बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. डाइसैकेराइड्स जो होते हैं ये भी ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, जिसमें दो मोनोसैकेराइड यूनिट जो होते हैं आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं. दीज रेजिड्यूज में भी आइदर सेम आर डिफरेंट. जो रेजिड्यूज होते हैं सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. तो डाइसैकेराइड्स आर ओलिगोसैकेराइड. डाइसैकेराइड भी एक तरह के ओलिगोसैकेराइड्स हैं. विथ ओनली द 2 मोनोसैकेराइड रेजिड्यूज आर लिंक्ड टुगेदर बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जिसमें 2 मोनोसैकेराइड रेजिड्यूज जो होते हैं आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं. और जो बंधने वाले मोनोसैकेराइड्स होते हैं सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं. जैसे ग्लूकोज भी हो सकता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज भी हो सकता है. ग्लूकोज तो सेम है, लेकिन ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है? डिफरेंट्स हैं. नेक्स्ट है, देखिए आगे हम बात करते हैं द जनरल फार्मूला ऑफ डाइसैकेराइड इज CnH2O होल n-1. डाइसैकेराइड्स को 2 भागों में बांटा गया है. फर्स्ट वन है द रिड्यूसिंग शुगर, सेकंड है नॉन रिड्यूसिंग शुगर. रिड्यूसिंग शुगर क्या है? इन लैक्टोज एंड माल्टोज इसका एक फार्मूला है RML. R मीन्स रिड्यूसिंग, L मीन्स लैक्टोज एंड M मीन्स माल्टोज. इन लैक्टोज एंड माल्टोज ओनली 1 एल्डिहाइड ग्रुप इज इंगेज्ड. लैक्टोज और माल्टोज में केवल एक ही एल्डिहाइड ग्रुप जो है इंगेज्ड होता है, व्यस्त होता है. एंड अदर इज द फ्री, और दूसरा स्वतंत्र होता है. एंड रिटेन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को जो है धारण कर लिया रहता है. दैट इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग शुगर, इसलिए इसको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं. एग्जाम्पल है लैक्टोज और माल्टोज. दूसरा है नॉन रिड्यूसिंग शुगर. सुक्रोज ऑन द अदर हैंड एज द 2 एक्टिव ग्रुप्स आर नॉट फ्री. इसमें जो 2 एक्टिव ग्रुप्स होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं. एग्जिबिट नो रिड्यूसिंग पावर, इनके पास कोई रिड्यूसिंग एबिलिटीज नहीं पाई जाती है, रिड्यूसिंग क्षमता नहीं पाई जाती है. दे आर कॉल्ड एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इनको नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं. एग्जाम्पल है सुक्रोज. तो रिड्यूसिंग का एग्जाम्पल है लैक्टोज माल्टोज, नॉन रिड्यूसिंग का है सुक्रोज. इन नेचर 16 डाइसैकेराइड एग्जिट्स. प्रकृति में 16 डाइसैकेराइड जो होती हैं पाई जाती हैं, बट ओनली 3 आर फिजियोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट्स. लेकिन इनमें से 3 का जो है फिजियोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. ट्राइसैकेराइड है जैसे रेफिनोज है, फाउंड इन द कैबेज एंड ब्रोकली. टेट्रासैकेराइड है, स्टाइकोज है, फाउंड इन द ग्रीन बीन्स. अब हम आगे बात करते हैं 1 by 1 तीनों लैक्टोज के बारे में हम बात कर लेते हैं.
वन बाई वन अब हम इनमें बात करेंगे। ऐसी बात हो रही है ओलिगोसैकेराइड्स की। अब हम इसके बाद कंटिन्यू करते हैं कुछ ओलिगोसैकेराइड्स का हम Now let us move forward talking about the oligosaccharides. Before this, we have to explain detailed information regarding the oligosaccharides. As we have earlier mentioned that oligosaccharides are the carbohydrate consist of 2 to 9 monosaccharide molecule condensed together by the glycosidic bond. इसके पहले हमने व्याख्या किया या बताया तो ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि 2 से 9 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स के आपस में जुड़ने के कारण होते हैं, जो आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ओलिगोसैकेराइड्स उनमें डाइसैकेराइड आती है, माल्टोज है, सुक्रोज है और लैक्टोज है। और हमने इससे पहले ये भी बताया कि रिड्यूसिंग क्या है और नॉन रिड्यूसिंग क्या है। रिड्यूसिंग में है आपका माल्टोज और लैक्टोज। तो हम सबसे पहले माल्टोज की बात करते हैं। माल्टोज डज नॉट अकर फ्रीली इन द बॉडी। माल्टोज जो है बॉडी में स्वतंत्र रूप पाई नहीं जाती है, बट इट इज इम्पॉर्टेंट एज एन इंटरमीडिएट स्टेज इन द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च टू फॉर्म ग्लूकोज। एक्चुअली माल्टोज बॉडी में स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती है, लेकिन महत्वपूर्ण कैसे है, जब स्टार्च ब्रेकडाउन होगी, स्टार्च टूटेगी, स्टार्च का मेटाबॉलिज्म होगा, ग्लूकोज बनाएगी, तो उसी के बीच में बनती है माल्टोज। मॉलिक्यूल ऑफ माल्टोज कंटेन 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एक माल्टोज मॉलिक्यूल जो है 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन द कार्बन नंबर 1 ऑफ 1 ग्लूकोज। दो ग्लूकोज के बीच दो ग्लूकोज के बीच जो भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनते हैं उनमें से पहले ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन और दूसरे ग्लूकोज के चौथे नंबर के कार्बन से के बीच में पाए जाते हैं। माल्टोज जो है हाइड्रोलाइज होता है एंजाइम माल्टेज के द्वारा, बना लेता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। उसके बाद नेक्स्ट है ये है फर्स्ट और सेकंड 2 ग्लूकोज हैं। देखिए कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 4 है, इसके बीच में वाटर की हाइड्रोलिसिस हो रही है, इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। देखिए ये बॉन्ड बन गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ माल्टोज यहाँ दिखाया गया है, प्लस वाटर यहाँ से रिमूव हो रहा है, तो जहाँ पर से वाटर रिमूव हो गए यहीं पे बनेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है इसके बीच में, दैट इज द लैक्टोज। अंदर इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड इज द सुक्रोज। दूसरी इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड है सुक्रोज है, विच अकर्स नेचुरली इन द शुगर केन। विच माने जो कि अकर्स माने पाई जाती है, नेचुरली माने प्राकृतिक रूप से कहाँ पाई जाती है, शुगर केन के अंदर पाई जाती है, गन्ने के अंदर पाई जाती है। इन द बीट रूट इट कंटेन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज। इसके जो सुक्रोज होती है दैट इज made up of 1 molecule of glucose and 1 molecule of fructose. It is hydrolyzed by the enzyme sucrase, that is also known as invertase, to produce 1 molecule of fructose and 1 molecule of glucose. तो जो सुक्रोज है इसको हम सुक्रोज जो है हाइड्रोलाइज होता है एक एंजाइम के द्वारा, इसका नाम है सुक्रेज, और बनाता है एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का और एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का। आगे बढ़ते हैं, इतनी बात क्लियर हो गई। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ये पहला ये देखिए सुक्रोज का केमिकल स्ट्रक्चर है। ये आपको पता है कि सुक्रोज जो है ब्रेकडाउन होगा तो बनाएगा क्या, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज। तो दोनों के बीच में देखिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये। नेक्स्ट है लैक्टोज। नेक्स्ट वन विल बी लैक्टोज। लैक्टोज कैसे बनते हैं देखिए, लैक्टोज को मिल्क शुगर भी कहा जाता है। एक्चुअली में जो लैक्टोज होता है उसको मिल्क शुगर क्यों कहते हैं, बिकॉज द लैक्टोज इज फाउंड इन द मिल्क। लैक्टोज आर मिल्क शुगर इज ए डाइसैकेराइड फाउंड इन द मिल्क
लैक्टोज और मिल्क शुगर क्या है? एक डाइसेक्राइड है जो कहाँ पाई जाती है? मिल्क में पाई जाती है। एंड इज सिंथेसाइड इन द मेमोरी ग्लैंड। और लैक्टोज की जो सिंथेसिस होती है मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर होती है। इट कंटेन वन मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। इसके अंदर ग्लूकोज के एक मालिक्यूल पाए जाते हैं एंड वन मालिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज। लैक्टोज के अंदर एक मालिक्यूल ग्लूकोज का पाया जाता है और एक मालिक्यूल जो है गैलेक्टोज का पाया जाता है। इट मीन्स दैट द लैक्टोज इज मेड अप ऑफ वन मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज and one molecule of galactose. Both the glucose and galactose molecules are joined together due to the glycosidic bond, and it is hydrolyzed by the enzyme lactase into one molecule of glucose and one molecule of galactose. देखिए ये ग्लूकोज है, ये गैलेक्टोज है, बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, और ये जो दोनों हैं एक ग्लूकोज है एक गैलेक्टोज है, इनके बीच ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। इसको हाइड्रोलाइज किसके द्वारा किया जाता है? लैक्टेज के द्वारा। लैक्टेज एंजाइम है, उसके द्वारा हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द डाइसेक्राइड्स। द नेक्स्ट लेक्चर जैसे अदर एग्जाम्पल क्या है ओलिगोसेक्राइड्स के, आप ये भी जान लीजिए। देयर आर सम अदर एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोसेक्राइड्स। व्हेन टू मोनोसेक्राइड्स आर कंडेंस्ड टुगेदर, जब दो मोनोसेक्राइड जो बनाते हैं तो डाइसेक्राइड बनती है। जब दो से ज़्यादा मोनोसेक्राइड कंडेंस होते हैं तो ट्राईसेक्राइड बनाते हैं, टेट्रासेक्राइड बनाते हैं, पेंटासेक्राइड्स बनाते हैं। इसके एग्जांपल हैं रेफिनोज, मैनिट्रोज, सेबिनोज, जेंटिनोज। इसकी किसका है? ट्राईसेक्राइड का है। स्टाइकोज, स्कार्डोज ये टेट्रासेक्राइड है, और बारबेस्कोज जो है वो पेंटासेक्राइड्स के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द पॉलीसेक्राइड्स। So that's all about the introduction and chemical classification of carbohydrates, information regarding the monosaccharides and information regarding the disaccharides. So thanks to all of you watching the video. Thank you. अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा जिससे फर्दर नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू watching the video. Thank you.